क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी जुयाल। आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये मैच है 43rd इस लिस्ट में। T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू हुआ 2 जून को और आज 43rd मैच तक पहुंच चुका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज भारत के साथ मैच है अफगानिस्तान का एंड लेट्स सी आज ग्राउंड में क्या देखने को मिलेगा। इस पूरे मैच पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। मैं उन्हें वेलकम करना चाहती हूँ। नोएल डेविड फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नोएल, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। Thank you, Damni, and welcome. I would love to say hi to all the viewers, and especially to you, Damni, because you've been a great anchor. You've been a great journalistic. So it's nice to see you back. Thank you, Noel. And we really had a great time together in the previous matches. So let me welcome the another Yeah. guest along with you, and that's Tanmay Mishra with us, former Kenya international cricketer. He is also with us in today's program. Tanmay, welcome to the program. Thank you. एक बार Good फिर से afternoon to आपका everyone. स्वागत है। Thank you. How's everyone doing? Everything is Good, good. Tanmay. How are you? God's grace, all is well. देखिए, जैसे से अंत के पास पहुंचते जा रहे हैं, हमें फिनाले दिखाई दे रहा है और वैसी इंटरेस्टिंग मैचेस भी हो रहे हैं। आज का मैच है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। इससे पहले मैं सवालों की लड़ियां लगाऊं, पहले आप दोनों की खुशी के बारे में जान लेते हैं कि नोएल, आपको कैसा लग रहा है? भारत यहाँ तक पहुंच गया, टॉप 8 की लिस्ट में है, खेल रहे हैं, बहुत जल्दी वो सेमीफाइनल्स में एंटर हम तो चाहेंगे हो जाए। तो आपको कैसा लग रहा है? Great feeling. Being a former international, being an Indian also, I think it gives me goosebumps to see our country doing really well. And I'm proud. I'm proud the way Rohit Sharma and his co are performing in this T20. I think with all the whatever is they have come across in US, the wickets, the weather conditions, everything, but yet they played their brand of cricket. They were up to that standard what people expected, the fans expected. I think as of yes, expectations from Virat Kohli was there. This does happen. This does happen in cricket. That's why we say it's unpredictable game. Cricket is a game of unpredictedness, and I think Virat is a super guy, super batsman. I think all this he has gone through in his life or the phase. I think he'll come good now. I think the wickets will really suit him to his batting because it is similar to the Indian conditions, the West Indies. So I think we are happy. But only thing is the first game. My prediction is always the first game. The hiccups will start from here. If the moment you take the first game away from your body and your system, I think everything will come into a straight line from there. राइट। तन्मय, पहला ही सवाल मैं पूछना चाहूंगी स्टेडियम के बारे में, क्योंकि आज का स्टेडियम है ब्रिज टाउन में। इस स्टेडियम में क्या ऐसा अलग है जो अभी तक के स्टेडियम में हमें नहीं देखने को मिला, चाहे आप बाउंड्रीज पिच या किसी भी चीज के बारे में बात करें, फील्ड के बारे में? देखिए, ये वेस्ट इंडीज की कुछ ही विकेटों में जानी जाती है जो अच्छी है बैटिंग के लिए। इसमें हमने हमेशा देखा है कि बाउंस रहता है बॉलर के पास, बट बाउंस में मारने का भी मतलब मौका मिलता है। आई थिंक अगर हम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रोहित शर्मा ने भी मतलब जो 90 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो 2010 के वर्ल्ड कप में था या 2009 के वर्ल्ड कप में था, जो वेस्ट इंडीज में हुआ था, वो शायद यही था। ये विकेट एक बैटिंग पैराडाइज नहीं कह सकते, बट कैसा है, बॉल तेज आती है। इट्स वन ऑफ द फास्टर विकेट्स। बैटिंग और बॉलिंग के लिए दोनों हेल्प रहता है, बट जहां तक हमने पिछले कई सालों से देखा है, रिसेंट ईयर्स में बैटिंग विकेट हो गई है। तो जहां तक मेरा मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी और है इंडियन बैट्समैन को, एक हालांकि लास्ट मैच नहीं हो पाया, but just like I want to echo David Bhai's point that the team is in a very good shape. It's enjoying each other's success, and somewhere down the line, in a very long time, in recent times, we've seen that this team has started to contribute. हम हमेशा जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं या रोहित शर्मा की बात करते हैं, बट जहां तक इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि सूर्य कुमार यादव ने भी अपना हाथ उठाया है, रोहित शर्मा ने पहले मैच में किया था, जसप्रीत बुमराह ने, और मोहम्मद सिराज अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान मैच में जिस हिसाब से बॉलिंग की, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि टीम जो एक बोलते हैं ना कि 11 के 11 प्लेयर में एटलीस्ट 7-8 आर कंट्रीब्यूटिंग, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। और 120 डिफेंड करना, दामिनी,
वो भी पाकिस्तान के सामने, one of your fiercest rivals. We don't give enough credit to Rohit and his men, So they are coming into this tournament with a lot of positive vibes, and long may it continue on this wicket. Right. Right. Noel, if जी just a please, quick one, if I please. add on to what Tanmay said on this wicket, because if you remember 1997 when we toured, we couldn't chase 120. We got 80 all out because the wicket was unpredictable a bit. Double paced wicket, one ball was coming up or flying, coming faster. One ball was keeping low, where the batsman was unable to. So I think that will be the same condition. And the other day in the first match I was watching, so the ball was keeping a bit low. Ek aadh ball carry ho raha hai, and otherwise, low bounce. So I think the wicket will be a crucial role player in this match also. नोएल, यहीं पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये दोनों टीम्स, चाहे इंडिया और अफगानिस्तान की बात करें, अभी तक 8 मैचेस में हेड टू हेड हुआ है इनका, आमने सामने खेले हैं, जिसमें 7 मैचेस इंडिया जीती है और एक भी मैच अभी तक अफगानिस्तान नहीं जीती है। तो आज कितना टफ है अफगानिस्तान के लिए हराना भारत को, आपको क्या लगता है? देखिए, सही जब आप आंकड़े देखें तो आंकड़े आंकड़े ही रहते, बिकॉज आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द स्टैट्स ऑफ एवरीथिंग। यस, इंडिया 7 अप, अफगानिस्तान इज 0, बट आज का गेम जो है इट प्लेज अ की रोल बिकॉज दे हैव बबल्ड इन कॉन्फिडेंस। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के बाद द वे दे प्लेड द ओडीआई वर्ल्ड कप, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द टीम। दे हैव almost beaten Australia to qualify. Missed drop catches has cost it, but they have played a brand of cricket जहाँ पर आप अगर देखेगा तो they have utilized the power play very well. They have bowled very well in the power play. उनके जो bowlers है, yes, एक वरी रहता है रशीद खान का, उनका जो out of form है bowling में, but doesn't matter. The other bowlers are chipping in, other batsmen are getting their runs. But what I feel about this team is, they are fearless. They are fearless team. हर कोई बंदा जाता है, fearless cricket खेलता है. He comes there with the intention एक ही, with a positive mind and approach. I think that's what Afghanistan. And I'm always scared of such teams because उनका दिन अगर it is their day, they will beat any side. That's Afghanistan. I mean, they have done it. They have done it. So I feel it's very important for India to keep their mental, their status calm and this thing, and go according to their own plans. राइट नोएल। तन्मय, आपसे अगर मैं स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में पूछूं भारत और अफगानिस्तान के मैचेस की अभी तक का, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 हो, उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे व्यूअर्स को? देखिए, जैसे अभी आपने कहा, डेविड भाई ने कहा कि इंडिया के हित में है, 7 बार इंडिया जीती है अफगानिस्तान से, बट यहाँ फोकस हमें ये चीज में करना चाहिए कि पिछले 7 मैचेस में हर बार अगर आपने देखा होगा तो अफगानिस्तान नजदीक आई है। पिछले परफॉर्मेंस जो पहली बार अगर देखेंगे जब इंडिया से हारी तो शायद डिफरेंस बड़ा रहेगा, फिर देखेंगे अभी हाल ही में जो 3 T20 के सीरीज हुए थे उसमें आई थिंक लास्ट मैच में बहुत क्लोज आ गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का क्रिकेट ऊंचा नहीं रहा है, इसका मतलब यही है कि हर बार जब अफगानिस्तान टीम जैसे कम्पिटिटिव मैचेस खेलती है और वो T20 में फ्रेंचाइज में भी खेल रही है तो वो अपना गेम बढ़ा रहे हैं। अब वो उस लेवल पे आ गए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, तो इनका स्टैंडर्ड रोज करीबी आ रहा है। अभी आप देख लीजिए कि जो राउंड रॉबिन मैचेस में थे, जो मार्जिन से उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, इट इज एन आई अवेकनिंग। I'm not saying that we should be surprised, but it is eye-awakening. I mean, at the end of the day, that was the difference. वो नेट रन रेट में, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज मानना भी होगा कि हाँ चलो 7 बार इंडिया ने खेला, अफगानिस्तान के जीता है, बट उस 7 बार में कितना नजदीक या उन्होंने अपना लेवल कितना लाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना लेवल इंप्रूव किया है। और यहाँ भी T20 हम हमेशा बोलते हैं कि उस दिन पे कौन टीम कैसी खेलती है वो जीतेगी। तो एज मच एज आंकड़े यही बताते हैं, इंडिया जहां तक मुझे तक पता है, जहां तक मैं रोहित शर्मा को जानता हूं, वो कोई टीम को लाइटली नहीं देते हैं। वो वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, उनको पता है अफगानिस्तान की जो स्पिन गेंद है इन विकेटों पे क्या कमाल कर सकती है, तो वो कुछ भी ग्रांटेड पे नहीं लेंगे एंड दे विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर अफगानिस्तान, hopefully to make it 8-0. But that doesn't go to say that Afghanistan hasn't improved its game. They will be the team to watch out. They can spoil someone's party. Let's not take them for granted. नोएल, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, प्लीज। देखिए, correct, Tanmay has really nailed it. But what I can say,
India will not be afraid of Australia. I think they will be afraid of Afghanistan because what क्या लेके आते हैं वो टाइम पे टेबल पे, उनकी क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट अलग है. ऑस्ट्रेलिया का एक ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, पता है इंडिया को व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर गोइंग टू प्ले, बट नॉट अफगानिस्तान. दे आर डिफरेंट. So I think India will be really geared up and really alert to when they play Afghanistan. राइट. नो, अगर मौसम खराब रहा और झमझम करके बारिश हो गई आज के मैच में, तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम पिछले मैच में हो चुकी है, हमने देखा कि मैच हो नहीं पाया. अगर आज भी बिजली कड़क गई और बारिश हो गई, फिर क्या होगा आज के मैच में? आपको क्या लगता है? ये परेशानी बहुत बड़ी है, बट इसका तरीका क्या रहेगा? This is nature. This is nature. You can't help it. But it all depends on the umpires. See, it can be an on and off match, a reduction of overs. Jab umpires feel that the rain can stop because West Indies में होता है, काफी होता है कि एक बारिश होती है, बड़ी बारिश, फिर एक 45 minutes to 50 minutes रुक जाता है. So it does happen there. It's not that continuous rain होता है. Certain part of Ireland में होता है continuous rain, but not Barbados में. I don't think it will be much of rain. वो तो भी एक shower होती है, फिर रुक जाती है. So I think it all depends on the umpires कि अगर रुका तो number of overs या नहीं तो then अगर ये सब है तो Duckworth Lewis will come into play. He'll be ready to wear his pads on and bowl also. So I think that will matter a lot when Duckworth, क्योंकि overs reduction में आपको इतने runs मारना है and all that will come. So I think all this is nature, but we as professional, as a team, India has to be ready to face all these situations. राइट. नोल, तन्मय, आखिरी सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों टीम का एक प्लेयर जिसे आज मौका मिलना चाहिए, जिसे अभी तक मौका नहीं मिला खेलने का, पर आज के मैच में मिलना चाहिए, वो कौन होंगे? चाहे वो अफगानिस्तान की बात करें, चाहे इंडिया. नोएल, ये सवाल लेके मैं वापस आपके पास भी आऊंगी. एक प्लेयर जो आपको लगता है कि आज मौका देना चाहिए. दामिनी जी, सुपर 8 में कोई भी टीम आके ये मौका नहीं देगी. वो वेल प्रिपेयर्ड रहेगी, उनको उनके 11 पता है. हाँ, अगर चोट लग गई या किसी हिसाब से वो अनअवेलेबल रहे तो बात अलग है, बट इस मुकाम पे आके कोई टीम एक्सपेरिमेंट नहीं करती है. जैसे हमने इंडिया टीम को ऑलरेडी देखा था कि वो जैसे इस टूर्नामेंट में स्टेप अप किए, उनको पता था उनकी 11 क्या थी. ये एक आपको बताता है कि मेंटालिटी इन्होंने मतलब इतनी दूर की सोची थी कि हम वही 11 खिलाएंगे जो सुपर 8 में खिलाएंगे उसी सिचुएशन से. तो मुझे नहीं लगता है कि अफगानिस्तान या इंडिया कोई मौका देगी किसी को. उनको पता है कि अगर कोई अनअवेलेबल रहा, जैसे इंजर्ड हो गया, तो उनको कौन आदमी को खिलाना है. बट इस मुकाम पे आके आप कोई चांसेस नहीं लोगे. आप वेल प्रिपेयर्ड, वेल रिहर्स्ड होगे, आपको एग्जैक्टली पता है आपके 11 क्या होंगे. हाँ, एक बात ये हो सकती है, जैसे विकेट और आपने मौसम का चर्चा किया, जहां कि अफगानिस्तान स्पिन हैवी है, अगर आज की विकेट में थोड़ी अपॉर्चुनिटी की एक और स्पिनर खिलाने को, तो इंडिया को एक ये उनके पास सवाल रहेगा या एक सिलेक्शन हेडेक ये रहेगा कि हम एक फास्ट बॉलर को बिठाएं या बैक करें अपने 11 को और खिलाएं, या कुलदीप यादव को ला सकते हैं. बट जहां तक मुझे अफगानिस्तान का लगता है, अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ स्पिन ही है, तो वो 11 के 11 वही प्लेयर खेलेंगे जो अभी तक परफॉर्म करते आए हैं. राइट. तन्मय, कुछ और नोएल आप इसमें ऐड करना चाहते हैं? जी प्लीज. बिल्कुल, yeah, correct. If I look at the wicket, if the wicket favors a bit of spinners, I will also go with Kuldeep. Why? Because it will be a toss between Ravindra Jadeja and Kuldeep. Now, if Ravindra Jadeja is going to play in the 11, I think they will drop Shivam Dube because he can bat. Jadeja can bat, so he will replace Dube. But if Kuldeep is playing, then they may drop a fast bowler. Okay, they may drop a fast bowler. They will have that same 11, batting lineup, but they may drop a fast bowler. So it will be a combination of this. If they prefer Jadeja because Jadeja has been a tremendous cricketer, this thing. If they they want to play Jadeja, they will drop Shivam Dube. If they want Kuldeep Yadav, I think they will drop a fast bowler. So this will be the toss up between these 4 guys. राइट. नोलन, तन्मय, लेट्स सी कि क्या होता है आज के मैच में. आज के लिए तो मैं इतना ही रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैच में भारत जीते. भारत यहाँ तक आया तो हम चाहते हैं कि भारत के हाथ पे ही ट्रॉफी आए. आई डोंट वांट टू बी बायस्ड. यस, अफगानिस्तान विल आल्सो प्ले वेल.
So thank you very much, Noel and Tanmay, प्रोग्राम में आने के लिए, अपने सारे insights share करने के लिए, and for this fantastic, amazing discussion. Thank you very much for being a part of this program. Cricket Predictor powered by 1xBat. आपका एक बार फिर से शुक्रिया करता है. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Damni. Thank you. Thank Bye, Noel.